Yes, we want to we will start? start with a minute of silence. Okay, Yeah, thank you. welcome. Thank you everyone for joining today's Healing Circle Talks. Before we begin, please allow me to read the guidelines for Healing Circle. Uh, yes, Healing Circles are based on Healing Circle are safe havens. They are based on the foundation of kindness and respect. We all participants agree to listen to each other with compassion and curiosity. We honor each other's unique ways of healing and don't presume to advise or fix or try to save each other. We hold all the stories shared in the circle within us, and we trust each one of us has guidance we need within us, and we rely on the power of silence to access it. So thank you so much for joining for today's Healing Circle Talks. And we have with us our today's speaker, Bhupendra Tripathi, a very inspiration person who has not only fought cancer, but also multiple other challenges in life as well. His journey personally inspires me a lot. I remember when I met Bhupendra when I was beginning my journey with Lovel's cancer 3 years ago. So I say Bhupendra, when he was on his way to achieve a completely successful life, until one day he suffered a paralytic attack after a fall in his house. He was diagnosed with non-Hodgkin's lymphoma, which is a rare type of blood cancer. He also lost his vision when he was on the verge of complete recovery from cancer. But none of that prevented him from achieving his dreams. He now works as the manager of the Reserve Bank of India. His journey is very inspiring and motivational. His journey of beating cancer is a very clear example that disability, or I would call that special ability, is just in the minds of people. It's time to stop focusing on your disabilities and focus on the abilities. Thank you so much, Bhupendra, for being an inspiration to all of us. Um, we you know what, the way I see, we all go through our small or different kind of challenges, but when I look at your journey, it's not, there's not one, there's two, three and four things which were not right at one point of time, but you did not give up. Rather, you converted those challenges into opportunities and being an inspiration to thousands of other people by setting up an example for all of that. So thank you so much, Bhupendra, for joining us in today's Healing Circle Talks by sharing your experience. And I would request you to please uh, share about your journey and how it began. Thank you so much. Am I audible to everyone? Yes. Okay. So thank you so much, first of all, Dimple ji, for giving me this opportunity today. And साथियों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार. आज का दिन बहुत स्पेशल दिन है because today is Holi 2021, and after a grueling period of lockdown of say around 12 months or so, now we have this festival of colors today, and this has a lot of symbolic meaning today for me. Why? Because it is not simply a festival of colors, but Holi, like one day, like today we do Holika Dahan, and it symbolizes कहते हैं ना वो बुराई के ऊपर अच्छाई की विजय. So today is the victory. As the story goes, you must have all heard of that story in your childhood. It's time to memorize or remember that just for a while, that the story of Bhakta Prahlad. He was tortured by unbelievable circumstances for around 8 days. Just before like today. So that those 8-day period is called the Holashtak. And in these 8 days, it was a test of his devotion. And he was like, he was facing death almost every day, right? And Prahlad was subjected to all kind, like, he was thrown from a mountain cliff, or he was thrown into a river, or in a well full of venomous snakes, and so on and so forth. And the pinnacle of that was today was the extreme pain and certain death was facing in front of him when he was, कहते ना चिता के ऊपर उसको, जलती हुई चिता के ऊपर उसको बैठाने वाले थे होलिका के साथ. So, and he came out all of that holding on to the straw of his unshakable devotion.
And that unshakable devotion helped him come out of this entire thing. And the divine had to manifest, and in the form of Narsimha Bhagwan today. And that's how the story goes, isn't it? And this is so much symbolic to me. And I get goosebumps that I got this opportunity today to share my experience, almost a story of a similar kind of unshakable faith in the universe, in the divine, in some spiritual cosmic energy. So that helped me, like, tide over that crisis period in my life. So with this background, I would like to share one of my favorite Sanskrit shloka, which was given to me by my mom when I was facing this unbelievable, you can say, enemy in front of me called cancer. So at that time, my mom gave me this Sanskrit shloka, and there it goes. It says, Mukam karoti vachalam pangum langhayate girim yat kripatamaham vande paramananda madhavam. Paramananda madhavam. So it says that a person who cannot even speak properly can become a powerful orator. A person who cannot even walk properly can climb mighty mountains. To cut it short, like all these tasks are seemingly impossible, isn't it? So it basically means that even the impossible can turn into a possibility if and if. It's almost like that terms and conditions apply. The second line of the shloka gives the condition that when you are able to maintain your state of mind in that Paramananda state. Now, that is the key word in the second, Paramananda Mad. So then only you get the divine blessings, or then only you get the divine manifestations of miracles in your life. And then you get the superpower to overcome the almost impossible cases of enemy facing you. This could be any kind of physical health enemy or financial or whatever crisis situation you have. That's like a symbolic word for that. So the impossible can turn into possible if we are able to maintain a state of mind which is permanent. Now, what is permanent state of mind? I would like to dwell here for a little bit. See, there is a thin line of difference between happiness and bliss. Okay, so happiness is a state of mind which is almost dependent on external circumstances, external people around us, or external objects. Okay. Now, अगर सब कुछ हमारे व्यक्ति, वस्तु और परिस्थितियां हमारे आसपास में अनुकूल होती हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें सुख का अनुभव होता है. पर ये जो सुख है, ये मतलब बहुत ही अस्थायी होता है. It's very temporary or transient in it. The moment the external circumstances change or the people around us, the same people whom we love so much can also become a cause of unhappiness or misery to us. Isn't it? We have all experienced that. And so happiness is one state of mind. But beyond that happiness, beyond the external circumstances of people, objects, and circumstances, there is something, a state of mind where there is permanent happiness. Or it is also called the bliss. Yes, so that bliss state of mind is called permanent. And if we are able to achieve that state of mind, even for little few moments every day, then that's it. We are going to invoke the divine energy within us. And that is the secret which I unfolded in my cancer journey. So going back to my cancer experiences right now. Right. Yeah. So you're putting something in the chat box, right? Yeah. Okay. So fair enough. So my story goes like this, friends. I'm not going too fast, right, Dimple? Everyone no, it's perfectly fine. Yeah. It's perfectly fine. Yeah. Okay. So as Dimple has already indicated, कि मेरी 12th साइंस के बाद मेरी इंजीनियरिंग हुई थी, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हुई थी, और उसमें भी 12th साइंस सीबीएसई में मैंने टॉप किया था और गुजरात स्टेट में. और उसके बाद इंजीनियरिंग में मुझे अंडर ग्रेजुएट मेरिट विद स्कॉलरशिप मिली थी, धीरूभाई अंबानी, वेरी प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप. All 4 years, I did my engineering from Nirma University, Ahmedabad, followed by getting placed during campus placement at
Tata Consultancy Services, where I served in various capacities for more than 8+ years. Continuing my, you can say, winning streak. There also, I was getting multiple awards from my employer for my outstanding performances, one after another. I started my career, professional career in IT field as a programmer, followed by being a module leader, project leader. And for 1.5 years, almost, I was also a technical faculty head of the training center, of in-house training center of TCS. And there also, I was awarded the best technical faculty within TCS by the global vice president of Tata Consultancy Services. So everything was going very good. And then I moved into a project in TCS where I was being sent to a European country, Finland to be precise, for an on-site assignment as a project manager. And at that time, my visa was stamped and the preparations were going on in full swing. You can imagine that Finland is very close to the North Pole. It was a very freezing climate, and I was going there for the first time. So I was advised to purchase snow jackets and snow boots and snow caps and snow gloves and everything which was which is sub-zero temperatures or something. So we were all doing all that shopping and everything was going on. And at that time, something happened in my life which changed my life forever. So this was the background, and now coming to the climax of the story. So so one fateful night, I am so sorry to cut you off here. हम लोग ज़्यादा conversation हिंदी में रख सकते हैं क्या? हाँ, क्यों नहीं? Thank you. ऐसा करते हैं. Thank you. So sorry for that. Request came. तो ऐसा हुआ साथियों कि एक रात्रि को जब मैं वॉशरूम से बाहर आ रहा था, तो अचानक से मैं जमीन पे गिर पड़ा और कई बार प्रयास करने के बाद भी मैं अपने पाँव पे खड़े नहीं हो पा रहा था. फिर माँ को आवाज लगाई और किसी तरह से 1-2 लोगों की मदद से मुझे बेड पे ले जाया गया. और जब मैं सुबह सो के उठा तो वापस अपने बेड से उठ नहीं पा रहा था. मेरे पाँव में कोई पावर बचा नहीं है, बहुत ही कम पावर था. मुझे लगा कुछ सीरियसली गड़बड़ है. फिर न्यूरो सर्जन्स को अपॉइंटमेंट लिया गया, घर पे बुलाया और उन्होंने फिर वो जो हैमर वाला टेस्ट करते हैं, वो सब प्रिक एंड हैमर, वो लोग सुई से प्रिक करते हैं सब सेंसिटिविटी चेक करने के लिए. एंड देन दे ऑलमोस्ट कंक्लूडेड कि इट इज सीवियर पैरालिटिक अटैक, वेस्ट डाउन, जिसको पैराप्लीजिया कहते हैं, नाभि से नीचे का हिस्सा पूरा grade 5 पैरालिसिस. एंड एट दैट टाइम न्यूरोसर्जन्स ने मुझे एडवाइस किया कि MRI स्कैन कराना चाहिए. तो जब रिपोर्ट आई तो काफी बड़ा एक उनको शॉक ऐसा हमें पूरी फैमिली को लगा कि ये जो पैरालिसिस हुआ था उसका कारण था कि मेरी पूरी स्पाइन में रीढ़ की हड्डी जिसको कहते हैं उसमें ट्यूमर्स हो गए थे. और इसका जब बायोप्सी कराया तो उससे भी बड़ा एक शॉक हमारे जीवन में आया. और पता चला कि जो ये उसकी भी एक स्टोरी है कि जो पहली बायोप्सी थी उसमें नेगेटिव रिजल्ट, कई बार फॉल्स रिजल्ट्स देता है. मगर उसके बाद जब सेकंड सैंपल हमने भेजा बोन मैरो का, तो उसके बाद डायग्नोस हुआ था कि ये कैंसर ऑलरेडी लास्ट स्टेज में पहुंच चुका है. और पेट सीटी स्कैन उसके बाद जब करवाया तो पता चला कि पूरे मेरे लिवर में, मेरे पैंक्रियास में, मेरे इंटेस्टाइन में, मेरे यूरिनरी ब्लैडर में और पूरे स्पाइन में, मतलब डॉर्सल से लेके टेल बोन तक, लंबर से, सारे स्पाइन के एरिया में अलग अलग मल्टीपल अराउंड 20 से ज्यादा नोड्स और 2-3 उसमें बहुत बड़ी गांठें थी. एंड नर्व कंप्रेशन के कारण ही ये मुझे पैरालिटिक अटैक हुआ था. और डॉक्टर्स ने फिर मुझे टर्मिनल पेशेंट डिक्लेयर कर दिया और बोला कि कोई फायदा नहीं है आगे ट्रीटमेंट करने का, ट्रीटमेंट शुरू करने का भी. सो नोबडी वाज रेडी. सो वी टुक सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन. सो एवरीवेयर इट वाज एट वन पॉइंट ऑफ टाइम मुझे नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा था, मगर वो सब जगह स्प्रेड हो गया था. सो जैसे मैंने बताया स्पाइन में और सब जगह बेसिकली काइंड ऑफ ब्लड. सो नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा भी अराउंड 32 टाइप्स का उस समय, कि अगर मैं कैंसर जर्नल्स को मैंने रिसर्च किया था तो नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा भी
32 वेरिएंट्स ऑलरेडी उसमें हैं, और उसमें भी जो सबसे सीवियरली एग्रेसिव फॉर्म ऑफ नॉन NHL जिसको कहते हैं DSDA शायद से, वो मुझे हुआ था, एंड क्वाइट एग्रेसिवली स्प्रेडिंग टाइप ऑफ नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा। तो ये मेरा डायग्नोसिस था उस समय। एंड उस समय मेरे एक विल पावर की एक परीक्षा थी, एंड मुझे याद है कि फिर अल्टीमेटली जब मेरी मदर और ने मेरे जो डॉक्टर्स की टीम थी उनको बोला कि मैं देखिए मेरे बेटे को बिना ट्रीटमेंट की इस दुनिया से तो जाने नहीं दूंगी, तो ट्रीटमेंट तो आप लोगों को कुछ करना ही पड़ेगा, तो आगे जो भी होगा देखा जाएगा, मगर ट्रीटमेंट तो आप लोगों को करना ही है। तो उस समय डॉक्टर्स लोगों ने मेरी भी नज़रों में नजरें डाल के देखा, तो फिर मैंने भी एज इफ वो मेरा भी अप्रूवल और मेरा भी राय जानना चाहते थे, तो फिर मैंने बोला ऑफ कोर्स मैं भी एक फाइटर की जैसे, एक योद्धा की जैसे मेरी आखिरी सांस तक लड़ूंगा, और कैंसर और पैरालिसिस दोनों के सामने लड़ूंगा, और हंसते हंसते लड़ूंगा, रोते रोते नहीं लड़ूंगा। तो ये मेरा एक एटीट्यूड है साथियों, जो हमें एक बल देता है, एक आंतरिक शक्ति देता है हमारे अंदर। और ये आंतरिक शक्ति ही मतलब ऐसे जब एकदम ही भयानक सी परिस्थिति हो हमारे सामने, जब कोई भी रास्ता समझ में ना आ रहा हो, तो ये एक शक्ति, आंतरिक शक्ति बहुत अधिक काम आती है। तो मैंने भी उस समय बोला कि मैं एक फाइटर की तरह लड़ूंगा और एक स्माइल के साथ लड़ूंगा। देखिए लड़ना तो होता ही है, तो चाहे रो रो के लड़ के और पैनिक होके, फ्रस्ट्रेट होके और फियर ऑफ डेथ के साथ अगर हम लड़ें, और उससे कहीं गुना अच्छा है कि मेरा उस समय मानना है साथियों, और अभी भी मेरा ये मानना है कि देखिए मरना सबको है, और फियर ऑफ डेथ मुझे एक तरीके से देखता है कि अगर हमने उसको ओवरकम कर लिया तो हमने आधी बाजी तो ऐसे ही जीत गई, आधी से भी ज्यादा। सो 80 to 90% आधी से ज्यादा हमारी तो जो ये होती है, इट्स बिकॉज ऑफ फियर ऑफ डेथ, एंड डेथ इज एक्चुअली इनएविटेबल फॉर एवरीवन। सबके लिए जीवन में आना ही है, तो किसी को पहले जाना है, किसी को बाद में जाना है, तो उसमें तो मतलब डेथ के बारे में सोच सोच के भयभीत होना, तो एक तरीके से इसको तो हमें सबसे पहले ओवरकम करना ही होगा। सो देयर इज नथिंग टू फियर अबाउट डेथ। ऐसा नहीं कि हम पहले इंसान होंगे जो मरने वाले हैं या मरेंगे, और मैं कहने का ये मतलब नहीं कि हम मर ही जाएंगे, मगर एक वो जो भय होता है उसको हमें ओवरकम बहुत आसानी से हम कर सकते हैं, कि कई सारे इट्स जस्ट लाइक ए प्रोसेस, एंड मरने से पहले हमें हर एक पल को पूरी तरीके से जीना है, 100% जीना है, और पूरी जोश के साथ जीना है, और पूरे उत्साह के साथ, एक स्माइल के साथ, ताकि मतलब कहते हैं ना कि जो सरहद पे या बॉर्डर पे भी कोई फाइटर होता है, वो अगर उसको जाना भी पड़ता है इस दुनिया से, उसके बाद भी सब लोग सैल्यूट करते हैं। तो अपने को भी ऐसे ही रहना है कि अपने सामने अगर कैंसर है या कोई भी ऐसी टर्मिनल इल है, कोई भी और सिकनेस है, तो उसको हमें एक बहुत करेज के साथ, एक फाइटर के एटीट्यूड के साथ उसको फेस करना है, और एक फेथ के साथ कि जो भी होगा मेरे लिए बेस्ट होगा। तो इस तरीके से जब मेरे मदर और मेरी जोड़ी को देखा कि ये लोग की जो एकदम स्पिरिट है वो एकदम इनडोमिटेबल है, तो डॉक्टर लोग फोर्स होके उन्होंने बोला कि चलिए ठीक है, और उन्होंने फिर मेरा कीमोथेरेपी और रेडिएशन रेकमेंड करके शुरू किया। तो मुझे याद है अभी भी कि जो मेरा फर्स्ट कीमो था, इट वाज हाफ डोज में जो देते हैं शुरुआत में, बिकॉज ऑलरेडी मैं 4th स्टेज एडवांस में था, 4th स्टेज के भी। तो डॉक्टर्स लोग बहुत नर्वस थे कि मैं इसको मतलब ड्यूरिंग द कीमो ओनली मे बी आई विल सकम, मतलब मैं उसको कोप अप कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज बहुत टॉक्सिक शॉक लगता है और लास्ट स्टेज में। सो डॉक्टर्स लोग बार बार आके मतलब मेरी पल्स चेक कर रहे थे, आर यू ओके, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है आपको, ये वो बार बार आके पूछ रहे थे। एंड वो लोग आपस में डिस्कस भी कर रहे थे, टीम ऑफ डॉक्टर्स। तो फिर कि पेशेंट का हेमोग्लोबिन, पेशेंट का बीपी, पल्स, ये वो सारे पैरामीटर। फिर मैंने एक बार बोला, एक्सक्यूज मी डॉक्टर्स, आप लोग किस पेशेंट के बारे में बात कर रहे हैं? तो बोलते कि आपके बारे में, और कौन? तो मैंने बोला पर सर एक्सक्यूज मी, इफ यू डोंट माइंड, मैं पेशेंट नहीं हूँ, आई एम अ फाइटर एंड आई एम फाइटिंग हियर कैंसर एंड पैरालिसिस, सो यू प्लीज बेटर कॉल मी अ फाइटर फ्रॉम नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स। तो
these people were shocked for a moment because he was the HOD of that civil hospital Ahmedabad, and he was literally shocked, uncle. And then he gave a big smile, and then he said, "Okay, hero, no more calling you patient." And उस दिन के बाद से throughout my cancer journey, like I was admitted around 6 से 8 महीने तो मैं वहाँ पे लगातार था। और उस समय मुझे सब भी, कोई भी जूनियर डॉक्टर्स से लेके इवन हाउसकीपिंग वाले भी, कोई भी आते थे तो हाय चैम्प, हाय हीरो, हाय फाइटर, लाइक दैट वाज द काइंड ऑफ चेंज इन द एनवायरनमेंट। तो हमारा अगर खुद के अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है, तो कहने का तात्पर्य है कि हम अपने आजू बाजू का जो हमारा वातावरण है उसमें से जितनी भी नेगेटिविटी है, उसको हमारे अंदर वो शक्ति है कि हम उसको हमारे ऊपर हावी ना होने दें, हमारी पॉजिटिविटी को उनके ऊपर हावी कर दे इस तरीके से कि वो पूरा एक कंटेजियस हो जाए। जैसे कि ये डिम्पल जी का भी ये पूरा इनिशिएटिव है, उसका क्या नाम है, लव हील्स कैंसर। सो दैट इज आल्सो द सेम थिंग कि हमारा the love has that power which can heal cancer. It's like deep seated healing subconscious level पे। So these are all very subtle things, ये बहुत सूक्ष्म चीजें हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो सूक्ष्म चीजों में जो पावर है, वो कोई भी स्थूल चीजें हैं कि टिप्स आपको कई सारे इंटरनेट पे मिल जाएंगे। इसलिए मैंने सोचा था कि आज मैं जो मेरे सूक्ष्म अनुभव हैं उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दूंगा अपनी टॉक में। तो एक तो मैंने आप लोग को बताया कि करेज, हमें फियर ऑफ डेथ, स्टेट ऑफ माइंड हमारा परमानंद का जैसे जैसे हो, आसपास की स्थिति से हम विचलित ना हो, और जब सब कुछ अच्छा अच्छा जीवन में हो रहा है ना, उस समय स्माइल करे कोई और खुश रहे, कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात तब होती है साथियों, और मनुष्य की परीक्षा तब होती है जो हमारा रियल गोल है, हमारा सच में उद्देश्य सच में यही है कि जब हमारे पर एकदम भयंकर से भयंकर परिस्थिति हो, उस समय भी हमारी अगर आशा है या जो हमारी विश्वास है, जो श्रद्धा है, जो फेथ है, वो बिल्कुल भी डगमगाए नहीं, और हमारे चेहरे पे जो मुस्कान है, स्माइल है, वो भी हम बना के रख सकें। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एटीट्यूड है। अगर हमने ये कर लिया तो आधी बाजी तो हमने ऐसे ही जीत ली। तो ये मेरा आप लोगों से अनुरोध है। एक दूसरा मुझे एक किस्सा याद आ रहा है डिम्पल जी और मेरे प्यारे साथियों, आप सबको भी मैं शेयर करना चाहूंगा कि जिस दिन मेरा ये बायोप्सी का रिजल्ट आया था सबसे पहले, मुझे अभी भी याद है कि उसके अगले दिन मेरा बर्थडे था। तो फैमिली में और डॉक्टर्स को कई सबको ऐसा मन में नहीं, ऐसा एक वो हो गया था कि मे बी ये मेरी लाइफ का लास्ट बर्थडे है। तो डॉक्टर्स लोगों ने भी रेकमेंड किया कि क्यों नहीं आप ये बर्थडे अपने घर पे सेलिब्रेट करके उसके बाद आप लोग माँ बेटे इतना जिद कर रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए, तो एक दिन और सही, और उसके बाद डे आफ्टर टुमारो यू गेट एडमिटेड एंड वी विल स्टार्ट द रेडिएशन एंड ऑल दैट। तो जी हाय, कैन आई रिक्वेस्ट यू, आपका वो ऑफ स्क्रीन हो गया है, थोड़ा सा आप एंगल चेंज करेंगे? अभी नो, लिटिल बिट टू द राइट। राइट, अभी आपको सॉरी लेफ्ट में मूव करना होगा आपको। सॉरी। अभी perfect, sorry about that. Yeah, thank you. No, that's okay. Thank you for correcting that. अभी सच में परफेक्ट है, राइट डिम्पल जी? थोड़ा सा राइट हो सकते हैं, अदरवाइज परफेक्ट। राइट, आई मीन सॉरी लेफ्ट। हाँ, now परफेक्ट, यस इट्स परफेक्ट नाउ, थैंक यू। इट वाज गोइंग बिट ऑफ फ्रेम, तो मुझे लगा मैं बता देती हूँ। नहीं सही है, अच्छा किया। थैंक यू। So my point was that, तो फिर मैंने डॉक्टर्स को बोला कि नहीं भाई, आई एम फेसिंग एन एनिमी जो हर एक सेकेंड वो स्प्रेड हो रहा है, तो व्हाई शुड आई वेट फॉर वन मोर डे, आई विल सेलिब्रेट माई बर्थडे। मैं मेरे जन्मदिन को यहीं पे हॉस्पिटल में मनाऊंगा। अभी आप लोग भी मेरी फैमिली में ही है, मेरी टीम है, तो मैं यहीं पे आप लोग के साथ ही मनाऊंगा। और फिर मैंने बोला कि मैं इससे अच्छा बर्थडे गिफ्ट अपने आप को क्या दे सकता हूँ कि अभी मुझे मेरी हेल्थ के लिए अगर मैं एक कदम अपनी ओर उठाऊं, ये रेडिएशन शुरू करें तो। I'm just sharing a few lines from your story, so yeah. Yeah, so my software is reading out your chat box message to me, so Okay. superbly written. Yeah. जो मैं बोलना चाहता था आपने उसको बहुत अच्छे से summarize किया। Attitude, it means a lot. It definitely means a lot. An attitude of a fighter and attitude of having deep, unshakable faith in whatever you believe. Like maybe it is your universal power or your
Krishna, or it can be your divine, whatever. So, but some faith, some anchor, it acts like that. Otherwise, when there is a tempest, कोई जब जीवन में तूफान आता है और अगर हमारे जीवन में कोई एंकर ना हो, मतलब कोई कहते हैं ना उसको, हमारी जड़ें मजबूत ना हो, और जड़ें मजबूत होना माने एक डीप अनशेकेबल फेथ होना किसी एक सत्ता में, एक डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी में. तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हमें हेल्प करता है किसी भी तूफान को मुस्कुराते हुए झेलने में. और आई वाज फॉर्चुनेट कि मेरे ये सारे जो सीड्स थे स्पिरिचुअलिटी के, काफी पहले, ये जो मेरे एपिसोड हुई कैंसर की, उसके अराउंड 7-8 साल पहले ही मैंने आर्ट ऑफ लिविंग का, श्री रविशंकर जी का कई सारे प्रोग्राम्स किए थे. एंड ऑलमोस्ट दैट हेल्प मी अ लॉट, लाइक नो, टू फेस ऑल दिस थिंग्स. और साथ ही बताना चाहूंगा कि जब मैं एडमिटेड था मेरे बर्थडे के दिन, मेरा जब रेडिएशन चल रहा था, और मैंने मेरे वार्ड में, मेरे फेस के सामने एक वॉल थी. रिमेम्बर मैं पैरालिटिक भी था, तो मुझे पूरा ऑलमोस्ट बेड पे मैं रहता था 180 डिग्री, और मुझे एक स्टेनलेस स्टील का एक जैकेट पहनाया जाता था, एक रोबोट के जैसा मस्त कूल लुक आती थी. एंड क्योंकि मेरी स्पाइन कहीं से बेंड नहीं होनी चाहिए, सो इट शुड रिमेन स्ट्रेट ऑल द टाइम. अदरवाइज स्पाइन में इतने सारे जो ट्यूमर्स थे उसमें कहीं फ्रैक्चर होने की चांसेस होती, तो कहीं से बेंड हो जाए तो वो कॉम्प्लिकेशंस और हो जाते हैं. तो पूरे टाइम स्ट्रेट रखने के लिए मुझे एक स्टेनलेस स्टील का जैकेट पहनाया जाता था बैक में पूरा, कि कहीं से बेंड ना हो, और आगे चेस्ट में और टमी एरिया में उसको बांधा जाता था ऐसे. और इस तरीके से मैं 180, तो मैं ऐसे लेटा रहता था, और लेटे लेटे मेरे आँख के सामने जो मेरी वॉल रहती थी उसमें मैंने मेरे स्पिरिचुअल सदगुरु हैं उनकी, श्री रविशंकर जी की, मैंने एक पिक्चर रखी थी. एंड आई यूज्ड टू हैव एन इनर डायलॉग विथ हिम. दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. कई बार क्या होता है कि हम हमारे जो भी डिवाइन है उसको हम कंपार्टमेंटलाइज कर लेते हैं, और सोचते हैं कि हमने दिन में 1 घंटा या आधे घंटे हमें करना है, उसके बाद बाकी दिन हमें वापस अपने माइंड में गार्बेज भरने हैं, नेगेटिव इमोशंस के, फियर के, वरीज के, टेंशन के. नहीं. अच्छा, जब हमारे जीवन में टेंशन होते हैं या कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो इट इज क्वाइट नॉर्मल कि हमारा माइंड बहुत विचलित हो जाए, और हम बार बार बेचैन हो जाएं, और हमारा मन झूला झूलते रहे भविष्य की चिंताओं को लेके, वरीज को लेके. तो दिस इज वेरी स्वाभाविक. बट देन एट द सेम टाइम अगर हमें थोड़ा सा भी हमने स्पिरिचुअल प्रिपरेशन अगर है हमारी, नहीं तो उस समय हमारे को क्या मेन आवश्यकता है हमें, कि हम एक ऐसे विटनेस बन के देखने की ओके ये फियर हमारे अंदर आ रहा है बार बार, फियर ऑफ फ्यूचर. बिकॉज ये सारे, व्हाट इज फियर, व्हाट इज वरी एक्चुअली, हैव यू एवर थॉट कि व्हाट इज वरी? इफ यू वांट टू डिफाइन वरी, वरी इज नथिंग बट कि एक सिमिलर काइंड ऑफ थॉट अगर आप बार बार आपके माइंड पे बॉम्बार्ड करते हैं, तो दैट बिकम्स लाइक ए वरी, राइट? तो हमें इस पैटर्न को ब्रेक करना होता है, और ये पैटर्न को ब्रेक करने के लिए इट्स ओके कि हमारे अंदर अगर ये कोई नेगेटिव इमोशंस उठते हैं, पर द स्मार्टनेस इज, द स्पिरिचुअल स्मार्टनेस इज कि जैसे ही ये उठें जल्द से जल्द उसको हम सरेंडर कर दें. और उसमें ये हेल्प करता है कि हम एक कांस्टेंट कनेक्शन रखें. तो जिसको भी हमारे अंदर हमारी फेथ है उसको बोल, अरे हम मेरे अंदर, और जैसे कृष्णा को कि ओ कृष्णा मेरे अंदर देखो ये फियर उठ रहा है, तो मैं ये फियर आपके चरणों में डाल रहा हूँ, अब आप मेरे फियर को संभालो, अब मुझे इस फियर से मुक्त कर दो, इस एंग्जाइटी से मुक्त कर दो, इस वरी से मुझे मुक्त कर दो. लेट मी बी फ्री एंड हैप्पी एंड पीसफुल, जो मेरा रियल नेचर है, जो सच्चिदानंद मेरा रियल स्वभाव है, मुझे जल्द से जल्द उसमें वापस लाइए. सो इट हेल्प्स. It's okay to take help of the divine, and it's okay to have a constant connection with them. It's okay कि हम हमारे डिवाइन को एक पार्टनर बना लें अपना. तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, बाकी सबका अलग अलग एक्सपीरियंस हो सकता है. सो इट हेल्प मी अलॉट ट्रेमेंडसली. एंड बाकी तो ऐसे अच्छा चलता रहा. अप्स एंड डाउन्स कई सारे होते हैं कीमोथेरेपी में, आप लोग ने भी सुना ही होगा. सबके कीमो में कई बार लोज आते हैं, और हमारी ब्लड केमिस्ट्री सपोर्ट नहीं करती है, प्लेटलेट से कुछ इतने ज़्यादा गिर जाते हैं कि फिर स्पेशली ब्लड कैंसर में कि फिर कीमो स्टॉप करना पड़ता है 1-2 महीने के लिए. फिर मुझे बीच में स्टेरॉइड थेरेपी भी दिया था, मतलब लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड्स पे रखा था, सो दैट मेरा हेमोग्लोबिन और ये सब को थोड़ा स्टेबल रखा जा सके. तो ये सब कुछ कुछ चल रहा था. उतार चढ़ाव कई सारे आ रहे थे, जर्नी चल रही थी. मेरे दिन में 2-3 बार फिजियोथेरेपी भी होती थी, बिकॉज
पहले शुरू में पैसिव, क्योंकि बिल्कुल पाँव में जान नहीं थी, तो फिजियोथेरेपिस्ट खुद आके मेरा पाँव उठाते थे, लेग रेसेस करते थे, नी बेंड करवाना, वो सब स्ट्रेचेस करवाना, वो पर धीरे धीरे करंट शॉक भी देते थे स्टिमुलेट करने के लिए। एंड धीरे धीरे फिर कुछ कुछ जैसे जैसे मेरी हीलिंग हो रही थी वैसे वैसे कुछ पाँव ने रिस्पॉन्ड करना शुरू किया, फिजियोथेरेपी ने और सबने, बॉडी ने भी। एंड तो अराउंड 12 मंथ्स तक मेरा ये साइकिल चली थी कीमो की, एंड ये वो 3 से 4 मेरी हाफ डोज हुई थी कीमो की, एंड उसके बाद फुल डोजेस भी 8 या 9। तो मुझे अभी भी याद है मेरी 7th कीमो के बाद मुझे जब पेट सीटी स्कैन हुआ था, तो मेरे को 98% कैंसर रेमिशन ऐसा बताया था, सारे ट्यूमर्स सारे श्रिंक होके ऑलमोस्ट 1 या 2% ही बाकी थे पूरे। सो वी वर ऑल वेरी हैप्पी, एंड हम लोग चाहते थे कि अब कीमोथेरेपी बंद हो जानी चाहिए। एज यू नो, बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी होते हैं उसके कीमोथेरेपी के, मुझे ये सब रिपीट करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को तो सब पता ही है। एक्चुअली हमें ना इन सब चीजों पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना चाहिए, और कुछ कुछ जो छोटी छोटी पॉजिटिव चीजें होती रहती है ना कैंसर की जर्नी में, उस पर अपने माइंड को, अपनी एनर्जी को ज्यादा डिवोट करना चाहिए, और ये मान के चलना चाहिए कि हाँ ठीक है, हम युद्ध लड़ रहे हैं, तो थोड़ा तो युद्ध में जो हमारे शत्रु है वो थोड़ा तो परेशान करेगा ही। सो वी शुड टेक इट इन आवर स्ट्राइड एंड डोंट मतलब उसको बहुत ज्यादा बॉदर नहीं हो जाना चाहिए कि हाँ डायरिया हुआ या वॉमिटिंग हो रही है कीमो के बाद, इट्स ओके, लाइक ठीक है। तो ये सब कुछ कुछ होता रहता है। एक मुझे और भी शेयर करना है साथियों की, मेरा लंबा पंक्चर प्रोसीजर मेरा हर एक कीमो के साथ होता था, और डॉक्टर्स के अनुसार ये वन ऑफ द मोस्ट पेनफुल मेडिकल प्रोसीजर्स माना जाता है, क्योंकि जो इसमें एनेस्थीसिया देते हैं, हमारे स्पाइन में एक पंक्चर करते हैं वो लोग रीढ़ की हड्डी में, और बहुत बड़ी नीडल होती है वो, नॉर्मल छोटी नीडल नहीं होती है, और बोन मैरो में लंब पूरा स्पाइन में पंक्चर करके लंबर एरिया में, और फिर अंदर बोन मैरो में इंजेक्शन सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में उनको देना होता है, CSF में। तो और वो एनेस्थीसिया पूरा वर्क नहीं, एनेस्थीसिया कैन वर्क only to up to certain layers of lumbar, उसके बाद beyond भी वो नीडल को पुश करना होता है, जहाँ पे वो वर्क नहीं करता है एनेस्थीसिया, और इट इज एक्सट्रीमली, वो लोग कहते हैं ना कि the waves of pain they start rising in the body. So I remember कि मेरे ऑन्कोलॉजिस्ट, और ये मेरे हर एक कीमो में होता था, क्योंकि ये दे डोंट वांटेड कि ये मेरे बाकी नर्वस सिस्टम में स्प्रेड हो, ब्रेन में या कहीं पे, तो उसके लिए वो प्रिवेंटिव ये देते थे। Dimple, I'm still visible in the middle of the screen? Yes, it's absolutely perfect. So then they used to prepare me for that, but then मुझे अभी भी याद है कि मेरे ऑन्कोलॉजिस्ट लोग ने मुझे सब ऐसे मेंटली प्रिपेयर तो किया था, एंड मैं उनके साथ जोक्स कर रहा था, बातें कर रहा था थ्रू आउट द प्रोसीजर, एंड लोकल एनेस्थीसिया दिया उन्होंने, सब कुछ दिया, एंड वैसे नहीं वो शिशु वाली पोजीशन में पूरा क्राउच करके लेटना होता है साइड में करवट लेके, तो उस पोजीशन में रख के फिर उन्होंने लंबा पंक्चर करना शुरू किया था। एंड जब मैं बात करते करते पूरा मैंने कहा बस हो भी गया पूरा, and these people were shocked and they said that we have never seen such a that who has never shouted or yelled in this procedure. मुझे उस समय रियलाइज हुआ कि ये मैंने कई सारे उपनिषदों में और शास्त्रों में पढ़ा है, और ये उसको मैंने रियल लाइफ में मेरे खुद उस समय एक्सपीरियंस किया, और उसको मैं अगर जैसे एक सूत्र या मंत्र की तरह आप लोग से शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि इन लाइफ बिकॉज ऑफ अ प्रारब्ध और वॉट एवर कर्मा थियरी, समटाइम्स हमें कई बार कुछ कर्म फलों को भोगना ही पड़ता है जीवन में, राइट? तो उसको कई सारे शास्त्रों में और उपनिषदों में उसको बताया गया है कि इट इज लाइक द फर्स्ट एरो, तो एक वो पहले तीर की तरह है जो हमारे शरीर में लगती है और उससे पेन होता है, ये होता है। मगर उसके बाद क्या होता है, अगर हम उसको एक सेकंड एरो भी होती है जो हमारे माइंड, जो हमारे फर्स्ट एरो लगी उससे पेन हुआ, ये हुआ, वो हुआ, अगर उसको हमने पेन को एक विटनेस के जैसे, अगर हमने एक लार्जर पिक्चर की तरह अपने आप को नहीं पहचाना है, कि अगर हम अपने आप को पूरी लाइफ अपने आप को सिर्फ बॉडी की तरह आइडेंटिफाई करते कि आई एम माय बॉडी, और सो देन वी विल नॉट बी एबल टू विटनेस इट। एक डिटैच व्यू अगर हम रख पाए कि ओके आई एम मच मोर देन माय फिजिकल बॉडी, so I am mind, so mind is definitely more subtle than body and it is a larger thing.
सो एक वो एक लार्जर व्यू अगर हम देख पाए और एज ए विटनेस देख पाए, जैसे कि हम कोई विटनेस जैसे मूवी देख रहे हैं उसी तरीके से देखें कि ओके ये प्रोसीजर हो रहा है, ये पेन हो रहा है, तो इफ यू कैन व्यू दैट वे, सो एज इफ ये किसी और की बॉडी में हो, दिस इज सो लाइक दैट. सो इफ यू एबल टू सी दैट, देन दैट पेन, वो जो सेकंड एरो होती है वो तब होती है कि ओके फर्स्ट एरो लगी, वो हिट हुई, हमें पेन हुआ, मगर उस पेन को हम लिंगर ऑन करते हैं. कई बार वी ट्यून टू दैट पेन because of our mind, like you know, by strongly identifying. अगर बहुत ज्यादा अपनी फिजिकल बॉडी से हमने पूरी लाइफ को, अपने माइंड को ऐसे ट्रेन किया है कि सिर्फ फिजिकल बॉडी पे ही हमारा ध्यान रहता है, तो फिर जब फर्स्ट एरो हिट होती है तो सेकेंड एरो जो होती है, फर्स्ट एरो होती है वो सफरिंग, वो पेन होती है, और सेकेंड एरो होती है वो सफरिंग होती है. सो जो पेन कैन टर्न इनटू अ सफरिंग because of our mind. So the sutra is कि the suffering, the pain is inevitable sometimes, but the suffering is definitely optional. So I will repeat this: pain sometimes is inevitable, but suffering is definitely optional, and it because of our mind. Like if we can train our mind, अगर हम अपने मन को इस तरीके से ट्रेन कर सकें कि जो हमें फर्स्ट एरो हिट हो जाए मगर सेकेंड एरो ना हिट हो पाए, तो वो एक बहुत बड़ी बात है. इस सब में बहुत सारे जो टेक्निक्स होते हैं वो बहुत काम आते हैं, जो प्राणायाम के हैं, ध्यान के हैं, योग के हैं. ये सब बहुत जरूरी है. ये सब कैंसर की जर्नी में, इवन कोई भी फाइनेंशियल या कोई भी क्राइसिस होती है, ये सब चीजें बहुत काम आते हैं, बिकॉज इट गिव्स यू ट्रिमेंडस विल पावर. जितना हो सके केयर गिवर्स को, कैंसर फाइटर्स को इसमें जरूर थोड़ा थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, जितनी आपकी एबिलिटी हो. इवन मैं जैसे मैं बता रहा था कि मैं पैरालिटिक था, बेडरिडन था, ये सब उठ के कुछ सूर्य नमस्कार या ये सब कुछ नहीं कर सकता था मैं. इवन सीधे बैठ के प्राणायाम भी नहीं कर सकता था, तो भी मैं क्या करता था कि मैंने मुद्रा प्राणायाम सीखी थी. जैसे अलग अलग तरीके की मुद्राएं होती, जैसे ये चिन्ह मुद्रा है, ये आदि मुद्रा है. तो ये अलग अलग मुद्राएं होती हैं उसमें, और उज्जयी ब्रीदिंग होती है, योगिक ब्रीदिंग होती है. वो लेटे लेटे पैरालिटिक पेशेंट्स भी आराम से करते हैं. उससे हमारे शरीर का प्राणा इंक्रीज होता है, और जब हमारा प्राणा इंक्रीज होता है तो हमारे शरीर मन में जो हमारे मन में जो डाउट्स उठते हैं बार बार, वो डाउट्स घटने लगते हैं. तो जैसे मैं फेथ और के बारे में बता रहा था, दूसरा एक दूसरा पहलू है मन का, वो है डाउट्स का. डाउट्स एक ऐसी चीज होती है जो संशय जिसको कहते हैं, भगवत गीता में भी लिखा है कि जो बार बार संशय करता है हर चीज में. तो वैसे मनुष्य क्या होते हैं कि कई बार वो आसपास के लोगों में डाउट करने लगते हैं, फिर जो उनके साथ कोई टेक्निक्स हो रही हैं, जो प्रोसीजर्स हो रहे हैं, उस पर डाउट करने लगते हैं, ट्रीटमेंट पे डाउट करने लगते हैं बार बार. और वो डाउट होते होते वो खुद की हीलिंग के ऊपर भी, कि ये सच में मेरे पे वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मेरी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है कि नहीं कर रही. और थोड़ा बहुत कोई बॉडी पॉजिटिव साइंस देती भी है तो भी मन में डाउट उठने लगते हैं कि पता नहीं ये छोटा सा एक पॉजिटिव साइन है, पता नहीं लास्ट करेगा कि नहीं करेगा, पिछली बार की तरह धोखा तो नहीं दे देगा. एंड ये तो कई बार माइंड में एक खिचड़ी पकती रहती है डाउट्स की, राइट. तो ये जो डाउट्स होते हैं, इसको कैसे हम लोग विजुअलाइज कर सकते हैं कि सपोज आपकी लाइफ एक बोट की तरह है, और आप बोट है, आप चला रहे हैं, ठीक है, एक के बाद एक तूफान आपको बोट वो क्रॉस कर पा रहे हैं. मगर अगर उस बोट में एक छोटा सा भी छेद हो जाए, राइट, तो क्या होगा. आप भले कितनी ताकत से उसको रोइंग कर रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तूफानों को पार करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर जो वो डाउट होता है हमारे माइंड में, वो एक उस होल की तरह काम करता है. आपकी बोट में वो छेद कर देगा, आपकी सारी जो इनर पॉजिटिविटी है, इनर स्ट्रेंथ है, उसमें लीकेज होने लगेगा, और आपकी जो प्राणा है वो गिरने लगेगी, घटने लगेगी. लो प्राणा से आपके अंदर मन में डाउट्स और ज्यादा आने लगेंगे. भगवत गीता में जैसे लिखा है, संशयात्मा विनश्यति. तो एक बार जब आपके मन को ये चारों तरफ से संशयों ने घेर लिया, तो फिर बहुत मुश्किल है उसमें से बचना. तो बहुत जरूरी है कि जब भी बहुत सारे संशय हो रहे हैं तो समझ जाने का कि हमारी जो फेथ की या श्रद्धा की, जो विश्वास की जो हमारी नाव है, उसमें छेद हो गया है, तो तुरंत उस छेद को भरना होता है श्रद्धा से और पूरे समर्पण से. ये सब हो सकता है, और लव से, द डिवाइन लव, all these things can help us in plugging that leakage. तो ये भी बहुत जरूरी है कि बहुत सारा
हमें एनालिटिकल होना है, हमें रैशनल होना है, दैट इज आई एम नॉट डिनाइंग दैट, पर पूरे टाइम हर चीज को डाउट करते रहना, स्केप्टिकल होना, बिकॉज फेथ का मीनिंग ही वही है. सो अगर मैं किसी को फेथ को डिफाइन करने की कोशिश करूं, फेथ इज लविंग द अननोन, राइट. एक्चुअली साइंस क्या कहता है कि इट वांट्स टू डाइसेक्ट द अननोन. तो कोई भी अननोन मिस्ट्री है, साइंस चाहता है कि उसको डिसेक्ट करे, उसको एनालाइज करे, उसको रैशनलाइज करे. पर जो फेथ है, इट वांट्स टू लव एंड इट रिस्पेक्ट्स द अननोन, राइट. व्हाटएवर इज द, like this entire creation is full of secrets and mysteries. So the spirituality or the faith is loving or respecting those mysteries, and that is how फिर माइंड में जो टर्बुलेंस रहती है वो शांत हो जाती है, वो एक स्टिलनेस ऑफ माइंड एक्सपीरियंस हो पाती है. तो दोनों का बैलेंस बहुत जरूरी है कि एक्सट्रीमली एनालिटिकल या डाउटफुल स्केप्टिकल माइंड और डाउटफुल माइंड इज डेफिनेटली नॉट प्रोग्रेस हेल्पफुल फॉर एनीथिंग, किसी भी फील्ड में, वेदर आप मटेरियल वर्ल्ड में या फिजिकल हेल्थ या कोई भी चीज को आप अचीव करना चाहते हैं, तो बार बार ये स्केप्टिक्स और डाउट विल नॉट हेल्प. डेफिनेटली इसको तो आपको ओवरकम करना पड़ेगा. तो यही सारे मेरे जो टूल्स थे वो मैंने आज आप लोग को अपना दिल खोल के साथियों आप लोग के साथ शेयर किया. फेथ, ओवरकमिंग डाउट्स, ओवरकमिंग फियर ऑफ डेथ, and what else, confidence, courage, willpower, not giving up. So all these things are help. And like उसके लिए थोड़ा थोड़ा डाइविंग विद इन एवरी डे. कहते हैं ना कि डेली हमें अपने गार्डन में, हम गार्डनिंग करते हैं जो लोग, उनको पता होगा कि जो वीड्स होते हैं मन में, वो मन में जो नेगेटिव विचार है वो वीड्स की तरह होते हैं. वो नहीं अनवांटेड जो घास फूस जो उग जाती है, वो नेगेटिव थॉट्स की तरह हम इमेजिन कर सकते हैं. तो उसको एक बार निकालना तो काफी नहीं है, हर रोज उसको वीड आउट करना पड़ता है. हमारे अंदर जो नेगेटिव थॉट्स या टेंडेंसीज कई बार उठती हैं, सो डेली वी नीड टू, हमारे गार्डन को हमें क्लीन मेंटेन करना पड़ता है. बहुत सारी थेरेपीज मैंने ट्राई की थी. 11-12 महीने के बाद मुझे डिक्लेयर किया गया था कि मैं 100% कैंसर फ्री हूँ. और जस्ट पोस्ट कैंसर की जो मेरी जर्नी है उसको मैं शॉर्ट में 2-3 मिनट में समराइज करूंगा कि मेरे हर एक कीमो के बाद मेरे को थोड़ा सा धुंधला दिख रहा था, और पहले मुझे आंखों में चश्मे थे. तो मैं मेरे वार्ड में था, तो वार्ड में लगी हुई टीवी नहीं देख पाता था ध्यान से, मतलब क्लियरली चश्मा पहनने के बाद भी. और सिमिलरली कई सारे बुक्स या न्यूज़पेपर्स नहीं पढ़ पा रहा था. सो फिर डॉक्टर्स लोगों ने बोला कि भाई कितनी बार तुम अपने आई ग्लासेस चेंज करवाओगे, बिकॉज अभी इतने सारे मेडिसिन ले रहे हैं और सब ट्रीटमेंट हो रहा है, तो कई बार आंखों के पावर फ्लक्चुएट होना नॉर्मल है. एंड दैट इज हाउ जब अल्टीमेटली जब मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ फाइनली वंस एंड फॉर ऑल, देयर वर ह्यूज सेलिब्रेशंस एंड ऑल दैट. एंड देन आई वेंट टू द आई डॉक्टर्स के पास गया मैं नए चश्मे के लिए, आई चेकअप के लिए. सो देन देयर वाज दिस बिगेस्ट शॉक आई कैन से. पाँव के नीचे से कहते हैं ना जमीन खिसक गई. डॉक्टर्स ने बताया कि आंखों की नस है, ऑप्टिक नर्व, वो बुरी तरीके से सूख गई है, और जो भी थोड़ा बहुत रेसिडुअल विजन है 15-20% का, वो भी अभी 1-2 महीने में या 2-2.5 महीने में चला जाएगा. फिर से वही प्रोसेस शुरू हुआ कि कई बार सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन, इधर उधर सारे आई डॉक्टर्स के पास, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट के पास रिपोर्ट्स लेके जाना, वापस वही थोड़ा बहुत जीवन में उठा पटक चालू हुई. एंड बेसिकली बहुत ही ज्यादा वो एगोनाइजिंग पीरियड था. फिर मैंने अचानक से एक दिन रियलाइज किया, जब सब जगह से एक ही ओपिनियन आ रहा था कि इसमें इरिवर्सिबल डैमेज होता है और कोई ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है. आंखों की नस जब एक बार डैमेज हो जाती है, सूख जाती है, तो सो देन फिर ऐसा सब हो रहा था कि बहुत ज्यादा माइंड, जितना कैंसर की जर्नी में मैं इतना हिला नहीं था, उतना ज्यादा ये ब्लाइंडनेस का विचार कर करके एक अगेन कहते हैं ना जो फियर ऑफ फ्यूचर फियर्स कि आगे करियर का क्या होगा, ये इसका क्या होगा, वो. सो ऑल दोस थिंग्स वर, दोस बर्डन्स वर लाइक जस्ट क्रशिंग मी. तो बहुत ज्यादा हो गया था. सडनली आई रियलाइज कि नथिंग डूइंग. सो देयर मस्ट बी सम रीजन कि ये जो डिवाइन ने मुझे कैंसर से बचाया, ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज कैंसर था जिसमें बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, वहां से मुझे यहाँ तक लेके आए हैं. आज मैं टोटली कैंसर से फ्री हूँ.
तो कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। तो भले ही ये आई साइट गई है तो क्या है, कुछ तो इसमें भी मेरे लिए पॉजिटिव ही होगा। और भले ही मुझे अभी पता नहीं चल रहा है, अभी चारों तरफ डार्क। फिर मेरी माँ ने भी मुझे बोला कि बेटा ये जो डार्कनेस है भले ही तुम्हारे चारों तरफ हो, और तुम इसको अपने मन के अंदर इस अंधेरे को मत घुसने देना, और मन में हमेशा एक ज्योति जलाए रखना, और वो जो विश्वास की ज्योति है उसको बुझने मत देना, तो देखो जरूर कोई ना कोई रास्ते तुम्हारे खुलेंगे। माँ की बात मैंने हमेशा मानी, तो फिर धीरे धीरे सारे रास्ते खुलने लगे। मेरे जो फिजियोथेरेपिस्ट थे उनको, उन्होंने मुझे बताया, एक दिन मैं गुस्से में आके उनको मैंने बोला फ्रस्ट्रेट होके थोड़ा, कि कल से आप मेरा फिजियोथेरेपी बंद कीजिए, अभी आई साइट जाने वाली है, डॉक्टर्स लोगों ने बोल दिया है, तो अभी मैं क्या करूंगा अपने। उस समय तक मैं वो वॉकर लेके चलता था, इतना परफेक्ट नहीं था मेरा इंडिपेंडेंट वॉकिंग, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना उस सब में मुझे सहारा लेना पड़ता था लोगों का, तो वो सब की फिजियोथेरेपी चल रही थी। तो वो मेरे फिजियोथेरेपिस्ट मेरे काफी क्लोज फ्रेंड बन गए थे, क्योंकि 1 साल तक ही वॉज ए विटनेस टू माई कैंसर फाइट, तो he became very dear friend of mine, तो he was a young guy and that is how, so मैंने उनको शेयर किया कि कल से आना बंद कर दो भाई, क्योंकि अब तो आई डॉक्टर्स ने भी ऐसा कह दिया है। तो फिर उन्होंने बोला कि अरे भाई आई साइट जाना इतनी छोटी सी बात है, आपने तो उससे थोड़ी जीवन रुक जाता है, आप तो ये मैनेज कर लोगे आराम से। तो मैंने बोला कि तुमको पता भी है, तुम इतने आसानी से बोल रहे हो, आई साइट जाना क्या होता है तुमको पता भी है, इट इज। तो फिर मेरे को बहुत गुस्सा आया था उस दिन डॉक्टर आलाप पे, मगर फिर देन उन्होंने बोला एक बार आप मेरे फादर से मिलिए, उसके बाद आप बोलेंगे तो उसके बाद मैं आना बंद कर दूंगा। मैंने कहा ठीक है भाई, तुम्हारे फादर से भी मिला देना। तो फिर उसके फादर को 2-4 दिन बाद लेके आए श्री कैलाश भाई गढ़वी, तो उन्होंने भी मुझे अपनी स्टोरी शेयर की कि he was also, he lost his eyesight completely when he was also like in his early childhood, 8-9 साल के थे तब, छोटे थे कैलाश भाई ने भी, और दैट इज हाउ उन्होंने बहुत स्ट्रगल के साथ पूरा जीवन किया, और पढ़ लिख के एमए तक किया, और उसके बाद गवर्नमेंट स्कूल में टीचर की तरह जॉब किया, और नॉर्मल आई साइटेड बच्चों को पढ़ाते थे, इंग्लिश पढ़ाते थे, म्यूजिक एंड ऑल दैट। सो आई वाज लाइक वाओ, फॉर लाइक यू नो। फिर उन्होंने मुझे ब्रेल सिखाना शुरू किया और शास्त्रीय संगीत भी सिखाना शुरू किया, वो विशारद है, तो धीरे धीरे मैंने वो सब सीखना शुरू किया उनके साथ। तो आई बिकेम, जो मेरे मन में जो रेस्टलेसनेस थी वो बहुत तरीके से शांत हो गई, और ये बहुत ज़रूरी है अपने माइंड पे वर्क करना, और उसके बाद भी हमें एक पावर मिलता है कि हम आगे बढ़ सकें। तो ये मुझे टोटली, जब रेस्टलेसनेस शांत हो गई शास्त्रीय संगीत से, म्यूजिक थेरेपी जैसे, फिजियोथेरेपी तो चली रही थी, और फिर अल्टीमेटली फिर मैंने मोटिवेशनल टॉक्स देने शुरू किए कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में। फिर मुझे एक बार एक ब्लाइंड स्कूल में मैं गया, मुझे बुलाया गया था, तो वहाँ पे मुझे कंप्यूटर लैब में जाके पता चला कि there are softwares which allow a blind person to use their computer, their smartphones to a great extent. तो अभी तक मुझे वो टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता था, तो जैसे ही मुझे पता चला मैंने इंस्टॉल किया, and then there was no looking back, started preparing for various competitive exams, और फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने कम से कम 7-8 कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और इंटरव्यूज क्रैक किए, और कई सारे मेरे को पास ऑफर लेटर्स आए, SBI PO, बैंक ऑफ बड़ौदा PO, IBPS क्लरिकल एग्जाम, रीजनल रूरल बैंक का ग्रामीण बैंक में, फिर RBI में जो क्लास 3 पोजीशन होती है असिस्टेंट ग्रेड की, UPSC सिविल सर्विसेज में भी इंटरव्यू कॉल मेरा रह गया 13 नंबर से। ये सब फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने आईसाइट जाने के बाद किया, और अल्टीमेटली क्लास 1 ऑफिसर के जैसे RBI में मैं मैनेजर के जैसे अपॉइंटेड हुआ। RBI गुजरात के अराउंड 65-70 इयर्स की हिस्ट्री में I became the first blind person to be posted at any position, whether it is class 4, class 3 or class 1. आज तक किसी भी दृष्टिबाधित व्यक्ति को उन्होंने अपॉइंट नहीं किया था RBI गुजरात में। So I became that, and then मुझे जब प्रोबेशन पीरियड होता है एज अ मैनेजर, तो एक काफी रिगरस ट्रेनिंग होती है। उस ट्रेनिंग के अंत में भी मुझे प्रिंसिपल से रिजर्व बैंक स्टाफ कॉलेज प्रिंसिपल्स अवार्ड फॉर बीइंग द आउटस्टैंडिंग ट्रेनी इन ओवरऑल परफॉर्मेंस, वो मुझे अवार्ड मिला था। तो उसमें भी काफी सारी स्टोरीज हैं कि एवरी वीकेंड इवैल्यूएशंस होते थे, एंड मेरे पूरे बैच में मुझे इंटरव्यू में तो हाईएस्ट मार्क्स आए थे, मगर
ये it was like a cherry on the top of the cake कि मुझे ये award भी मिला था मेरी training के अंत में. So it was a lot of hard work. After loss of eyesight, it was not that easy. But yes, that spirit जो रहती है to move on, to give a tough fight, that helps me everywhere. So that's it. And उसके बाद मुझे national award 2018 में मिला था. उसके लिए मुझे रिजर्व बैंक ने मेरा नाम रेकमेंड किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, and I became the best visually challenged employee of the country because of the recommendation of RBI. 2017 में, मतलब ये नेशनल अवार्ड मिलने से एक साल पहले, मुझे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF वाशिंगटन DC में I became the first blind person in the whole world to crack a certification program in macroeconomic accounting. तो वो जो मैक्रो इकोनॉमिक अकाउंटिंग का मैंने सर्टिफिकेशन प्रोग्राम कोर्स कंप्लीट किया था, वो करने वाला मैं पहला ब्लाइंड व्यक्ति बना पूरे वर्ल्ड का. भारत का नाम मैंने रोशन किया विश्व में, और 93% आए थे उसमें भी मुझे ओवरऑल एग्रीगेट स्कोर जो मेरा था. तो उसके बाद ही मुझे आरबीआई ने थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आरबीआई ने फिर उसके बाद मेरा नाम रेकमेंड किया था और अल्टीमेटली नेशनल अवार्ड मिला. आज मैं आई एम सो एक्सट्रीमली थैंकफुल. सो दिस कम्स टू द लास्ट टूल विच आई यूज, माय टूल किट. मैंने कई सारे एटीट्यूड के सारे एस्पेक्ट्स आप लोग को बताए. एक ये जो एटीट्यूड है, एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, बिकॉज दिस इज सो इम्पोर्टेंट. आज मैं इतना थैंकफुल हूँ मैंने डिवाइन के, कि भले ही मैं TCS में इससे जितना मैं आज कमा रहा हूँ, हो सकता है उसका डबल उस समय कमा रहा होता, पर आज मैं जितना यूथ में जाके यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में और NGOs में और प्लेटफॉर्म्स में सारे एक सोसाइटी में एक पॉजिटिविटी और नॉट गिविंग अप का एक एटीट्यूड लोगों के अंदर जगा रहा हूँ. सो ये जो मुझे एक एक्सट्रीम जो कंटेंटमेंट में लाइफ में मिल रही है, वो चाहे कितना भी मैं वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में मैं सक्सेस मिल जाता, कुछ भी हो जाता. आई एम नॉट सेइंग all those things are bad, but I'm so thankful to the divine. I could not have asked for more. मतलब ये मेरी जो ब्लाइंडनेस हुई, सब कुछ इट्स लाइक सोने पे सुहागा. एंड सब कुछ अच्छे से मैं आज दे पा रहा हूँ सोसाइटी में. भले ही मैं देख नहीं पा रहा हूँ, मगर लोगों को एक दिशा दिखा पा रहा हूँ. सो आई एम वेरी कंटेंटफुल एंड आई लाइक इट्स लाइक buy one get one offer. I have become, in one life I am able to experience 2 lifetimes. So इससे ज़्यादा और क्या चाहिए. तो I am so happy and contentful, and this attitude of gratitude is very important. Otherwise अगर ये attitude नहीं होगा, तो हमारा मन की जो tendency है वो attitude of grumbling होती है. मतलब क्या कि हमारा मन शिकायत करता है, अरे मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, या तो फिर मेरे साथ ही हमेशा बुरा होता है. तो ये सारी जो शिकायत करने का जो ग्रम्बलिंग का एटीट्यूड है, वो हमारी सारी पॉजिटिविटी को तहस नहस कर देता है. तो ये बहुत जरूरी है कि इसको हम तुरंत कन्वर्ट कर दें एटीट्यूड ऑफ ग्रम्बलिंग को एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड में. तो विद दिस आई थिंक आई हैव स्पोकन अ लॉट. डिंपल जी, आप मुझे टाइम का ज्ञान देंगे, अभी क्या टाइम हुआ है? जी, so अभी we have 6 minutes and I would request किसी के कुछ क्वेश्चंस हैं तो right, if anybody wants to share anything. Neha? Hello. Hi Dimple ji. Hi. Hello sir. हेलो नेहा जी. सर ये है कि अभी मेरे पास कुछ वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए. बस मैं दिल से कोशिश करूंगी कि मैं कुछ आपसे सीख रही हूँ अभी. और अभी मैं कीमोथेरेपी पे हूँ, 2nd टाइम मेरा रिलैप्स हो गया है. तो मैं अभी यही सिर्फ आपकी जो आपने अभी कहा है, मैं वही सब सोच रही हूँ कि अब मुझे बस ऐसा ही बनना है. मतलब मैं जितनी मेरी अभी जो थोड़ी थोड़ी वरीज भी हैं वो सब निकलती जा रही हैं, फ्लश होती जा रही हैं आपकी बातें सुनकर. तो थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. Thank you, Neha. Stay in touch, friends. Yeah. Thank you. Thank you, Neha. Mehul, you would like to share? Hi, Bhupendra. This is Mehul. Hi, buddy. Fan होगा मैं. Man, you put to shame so many people. Kind of, I was listening and मुझे लग रहा था कि यार मतलब this man is like a Superman. You have broken all barriers. You have not stopped anywhere. You have not
thought of going back, and yeah, salute, man. No words. Thank you for sharing your experience today. Thank you, Thank Mehul. you so much, Mehul, and Neha and everyone for those loving remarks. Rajesh? Yeah, exceptionally inspirational. So nice the way in which he has managed his life and his tortures and his problems. I like Mehul, I don't have any word to express, but I'll take these stories to many of my friends who are undergoing the treatment. It's really, really very encouraging and motivational. Thank you so much, buddy. Thank you so much. Congratulations. And Dimple, with your permission, can I do some marketing of my YouTube channel? Even spreading hope and sharing inspirational. Yes, please do. That's what I have my channel, friends. Uska naam hai National Awardee Bhupendra Tripathi. If you guys can contribute in terms of subscribing to that channel and sharing with your friends, because कई बार क्या होता है कि ये स्टोरी तो भगवान ने ही बनाई है. आई एम नॉट द डायरेक्टर ऑफ माय ओन लाइफ स्टोरी क्लियरली. तो आई थिंक ये जितने लोगों तक पहुंचे ये स्टोरी, ये लोगों के डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो उनको पॉजिटिव एक बूस्ट देगी. तो आप लोग प्लीज इसमें सपोर्ट कीजिएगा. And I would love to read your comments also on my channel on some of my videos. So because क्या है कि 5 साल बाद, 10 साल बाद या even 20 years बाद भी वो हम YouTube के comments होते हैं वो permanent जैसे होते हैं. WhatsApp में या ये सब होते हैं comments, वो धीरे धीरे memory में या with time वो evaporate हो जाते हैं. And it's so amazing to read those comments. So please थोड़ा बहुत आप वहाँ पे भी लिखिएगा. Nani, sure, you are not a director of the story, but you are the creator of the story. Producer of the story. Director directs, but you create. You have created a wonderful story for yourself, for the society, and for so many people. And I will certainly support you, help you, and in your YouTube channel, I need to get the link, and I will certainly do it. Certainly do I will it. share link. Thank you. It seems like all the inspirational people are in Gujarat. 3 people in row. Gujaratis are generally inspirational, madam. Okay. Yes, Creator also. Yeah. મેહુલ ભાઈ તમે ગુજરાતી છો? Yeah, I am Gujarati, Ahmedabad. क्या बात? Yes, yes. હું રાજકોટ જુનાગઢ પ્રોપર સૌરાષ્ટ્રનો છું. કાઠિયાવાડી, કાઠિયા પાપડા અને જલેબી. Okay, Prashant ji, yes, Komal, just a minute. Prashant ji, you want to share something? Yes, please. Prashant ji, we can't hear you. We'll come back to him. Komal, yes, please share. Eagerly waiting. हेलो सर, मैंने ना आपका YouTube पे देखा था वीडियो और आई वाज वेरी इंस्पायर्ड और मैंने कई ग्रुप्स में भी शेयर किया था और मेरे लिए इतना यानी कि ड्रीम कम ट्रू है कि आज मैं आपको जूम पे देख पा रही हूँ. थैंक यू डिम्पल. और आप इतना ज्यादा इंस्पायर करते हो. Hats off to you, sir. Or you've inspired so many people. You're a real noble soul, God's angel. God bless you. कोमल, God bless you all too. कोमल, सोचो अभी तुमसे मुझे वर्चुअली देख रही हो, जब लाइव मिलोगी तो फिर ज्यादा बहुत. So it's like an open invitation to all of you. Like, you know, if you ever hang around अहमदाबाद वाला, तो मेरे को एक दोस्त मिल ही गया है, पर मैं एक्चुअली गांधीनगर रहता हूँ. अहमदाबाद गांधीनगर पास में ही है, आजू बाजू में. So please do drop in. Thank you. जल्दी से ये finish करो कैंसर फाइट जिसकी चल रही है, and join my gang. Thank you everyone. Thank you Bhupendra. It's always pleasure knowing more about your journey. I remember 3 years back जब हम मिले थे, I was so inspired, so touched, because that time I was beginning my journey in this cancer care, and blessed that I began my journey finding inspiration from your journey.
and we all are fortunate today that you that we spent this healing circle with you, got to learn a lot from you कि कितनी भी difficult circumstances क्यों ना आ जाए life में, it's all temporary and we all will come out of it. So those who are going through this difficult journey, जिनका treatment चल रहा है, it's all temporary. भूपेंद्र को एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार problems थी, and see where he is today. So if one person can do it, then yes, we all can do it. I take that message from your journey, and really grateful that we have such an inspiring people around us, and you all, in fact, everybody who has gone through the journey, who is going through the journey, बाकी लोगों को बहुत हिम्मत देता है, और आपको पता नहीं है कि ये स्टोरीज, ये जर्नी कहाँ कहाँ तक अपना रिपल इफेक्ट्स लेके जाती है और किस किस को इंस्पायर करती है. एंड दैट्स व्हाट मोटिवेट ऑल ऑफ अस टू डू मोर एंड मोर. एंड from the depth of my heart, deep gratitude to each one of you, to spread hope, to spread inspiration, to spread that yes, anything is possible. When we see in cancer, yes, medical treatment is a part of it. It's not everything. What is really needed is such kind of more and more stories, and what helped you, what can help others as well. And it's the care, it's the compassion, gratitude, and फाइटिंग विद दिस डिजीज की हो जाएगा, टेम्पररी है. फोर्थ स्टेज के कितने सारे सर्वाइवर्स है, तो आप क्यों नहीं हो सकते हो. सो या, सो इट्स ऑल द विल पावर एंड कीप ऑन डूइंग, नेवर एवर गिव अप. Yeah. And maybe Dimple ji, मुझे मन में अभी एक thought आ रहा है कि we can have a follow-up session about couple of my learnings about some diet, food. Yeah, for sure, would love to. So, Yeah, some other definitely. day. This part I wanted to cover, but since you have to leave abhi, so other complementary therapies which you did in your journey, I'm sure that must have contributed for sure. So would love to do a follow-up session. कुछ लोगों ने chat box में comments लिखे हैं, मैं सुन नहीं पाया, मेरे सॉफ्टवेयर ने read out किया I था. will send it to you. हाँ, आप मुझे भेजेंगे बाद मैं में. आपको भेज दूंगी. Right. स्क्रीनशॉट ले या तो मुझे भेज ही दीजिएगा, कॉपी पेस्ट कर. Right. मैं आपको भेजती हूँ. So Thank you so much. And we'll close the circle with a Yes. minute of silence. With 1 minute of silence. Yeah. Thank you. Thank you, everyone. And a big salute to your parents as well, who were always with you like a rock solid support. And I'm sure without their support, their care, their love, this all could not have been possible. So convey our regards to your parents as well. Thank you so much. Thank you. Thank you, everyone. Bless everyone. Thank you.